Hello everyone, welcome back to NCRT Learning Academy. Today we are going to do class 7th Science Chapter 1 Nutrients and the Plants. We are covering this using the some notes that I have prepared. Like the living organisms such as plants and animals survive using the food by eating the food, not by using the food. The food gives them the energy to perform several activities. फूड उन्हें बहुत सारी एनर्जी देता है जिससे वो एक्टिविटीज कर सकते हैं लाइक यू आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ दिस फूड in their life that also help in the growth. Nutrients, certain amounts are present in the foods that help in survival of organism. What is nutrients? They are the certain substance जो हमारे foods में होते हैं. We have covered in the class 6 in the chapter 2 components of the food, and this is the thing we have to obtain. Okay. The special substances are called nutrients. What are they called? Nutrients. For example, proteins, vitamins, carbohydrates, minerals, and fats. Some living organisms like plant synthesize their food by themselves, while others such as animal depend upon the plant and other animal for their food. Can you tell that what is the importance of photosynthesis in the plant? Because they made their food by themselves, but we like animals, we are also like omnivorous, carnivorous, herbivorous. They have to depend, herbivorous depend upon plants and other animal depend upon plants. Sometimes they are even getting the solar energy. They are only eating the plant based product by different method. Okay. Nutrients. So what are the nutrients? Carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral and water. Water, mineral, vitamin, fat, protein and carbohydrate. You know that we got carbohydrate from there are picture given of something you can say rice. Examples are rice and roti you can say or chapati. And there are too many types of carbohydrate. There are, you all know that we have a study about only glucose in the previous class, but there are many type of carbohydrate. You are in class 7, so you should all know that uh, so, uh, sugar is there, glucose is there, starch is there. We have also studied about starch test. Do you know what is starch test? You have studied in class 6. Then it is fructose, then I think sucrose, then lactose and cellulose, and there are so many types of carbohydrate like this. Monosaccharides are there also, if you know. So mode of nutrients in the plant. What is nutrients? Nutrient can be defined as a process by which organism take in the food and utilize it in order to survive. Based on the mode of nutrients, organism can be divided into two categories: autotrophic organism and heterotrophic organism. What is autotrophic organism? They can prepare their food by themselves, such as plant. वो अपना खुद का खाना बनाते हैं जैसे plants हुए. एंड फिर होते हैं हेट्रोट्रोपिक्स ऑर्गेनिज्म. वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे. वो अपना खुद का खाना नहीं बनाते. वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे. लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर देयर आल्सो इन दैट कैटेगरी, वी कैन सी. Okay, see, we can see the examples such as animals. Okay, how do plant prepare their food? Plant prepare their food with the help of certain raw materials. Raw material की हेल्प से ये प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. अब कैसी सराउंडिंग्स से अभी हमने आपको बताया ही है. वाटर है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, देन सनलाइट है, देन मिनरल्स है, देन क्लोरोफिल है. अभी क्लोरोफिल जो होता है ना, इनकी लीफ ही में प्रेजेंट होता है. सो इनकी लीव्स जो होती है इनके खाने बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं. और ये केमिकल होता है जिसकी वजह से हमारे लीव्स भी ग्रीन रहते हैं.
फिर सनलाइट तो इम्पॉर्टेंट है. सो दैट वाज आई वाज सेइंग दैट वी आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टेकिंग द सोलर एनर्जी. ओके. The process by which plant prepare their food using these raw materials are called photosynthesis. These raw material, water, carbon dioxide, sunlight, chlorophyll, water, we call them process photosynthesis. Here you can see light energy, we call it solar energy also. The sun is giving there. The plant is also absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. The chlorophyll helps in the leaf, and water and the minerals are at the root. You understood, everyone? Okay. Where is the food made in plant? Okay, leaves are known as the food factories of the plant, as they are places where food is prepared. Different part of leaf like roots gather the raw material from the environment and then transfer them to leaves where photosynthesis take place. अब लीफ जो होती है इसमें मेन भूमिका निभाती है अपनी. कैसे? अगर क्लोरोफिल हमारे उसके अंदर प्रेजेंट है प्लांट के लीफ में, अगर वो नहीं होगा तो वो खाना ही नहीं बना पाएंगे. दे विल नॉट एबल टू रिलीज द ऑक्सीजन, नॉट एबल टू टेक द सोलर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. ओके. Transportation and water and mineral in plants. The root of plant absorb the water and minerals of the soil and then transport them to the leaf via stems and branches. Here you can see it has also given. So transportation कैसे होता है water and mineral का? जो हमारा root होता है, like we can, I'm just drawing a diagram here. You can see that this is our root. I'm drawing just anything, you can observe here, you can see. Okay, यहाँ से observe होगा water और mineral. But wait a minute. वाटर एंड मिनरल हमारा यहाँ से ऑब्जर्व होगा, वाटर और मिनरल. ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. उसके बाद और किससे ऑब्जर्व होता है? ये सोइल से. ये आपका नीचे का पार्ट मैंने बनाया है सोइल. ओके. फिर वो ट्रांसपोर्ट होती है लीफ किसकी मदद से? यहाँ पर अब हम बना देते हैं स्टेम बना दिया मैंने यहाँ पे, और स्टेम बना के मैंने यहाँ पे कुछ लीव्स बना दी. मान के चलो बहुत छोटा प्लांट है जो अभी इसको बस 22 डेज ही हुए हैं, 22 डेज यू कैन से. और फिर ये ब्रांचेस में जाती है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितने छोटे छोटे ब्रांचेस है ना, जिससे लीव्स है, और इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उनकी मदद से. आपको इतना डीपली तो समझ में आना चाहिए ये सब, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. दे कैन कम इन द एग्जामिनेशन. फिर ये आपका फिगर है जो बताता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स. तो देखिए, सो दिस इज बर्ड. नो, आई एम सेइंग बर्ड. ओके, नो. सो सी हियर, water and minerals are taken up by roots. You can see. So that's why we give the water in the soil, not on the above of plant. Many kids think in the childhood that we give them on the plant and they don't observe from soil. But when you are going up, you should know this. And from the soil, the stem is observing it. Here you can see they are going through the stems. Okay, then it is coming to leaves. Okay, ये leaves है हमारी. फिर ग्लूकोज मूव अप होता है ग्रोइंग बर्ड पे. वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सोइल आ गया. अब ग्लूकोज बन गया हमारा फोटोसिंथेसिस से, और फिर ये जाएगा नीचे टू द ग्रोइंग रूट. ये कहाँ चला जाएगा? ग्रोइंग रूट पे. समझे आप लोग? सो ग्लूकोज भी इसके अंदर मूव करती है. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. Inhalation of carbon dioxide. There are tiny holes or pores present on the surface. They are called stomata. आप जानते हैं ना स्टोमाटा को? You have studied in class 6 but not deeply. So we are going to take the जो टेक करती है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में. आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपके ये जो है इन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं.
और यहाँ पे एक पिक्चर भी गिवन है, ये है आपकी क्लोरोफिल्स, ये जो है ये आपका क्लोरोफिल है। ये जो है ये है आपका गार्ड सेल, और ये है आपका स्टोमाटा। ये देखिए गार्ड सेल, यहाँ पर ये हो गया आपका गार्ड सेल, ये देखिए ये आपका गार्ड सेल, और ये स्टोमाटा भी ओपन हुआ है, ये ओपन स्टोमाटा है। स्टोमाटा, लीव्स एंड द क्लोरोफिल। अब हम कैसे पहचानेंगे presence of chlorophyll in the leaves? Okay, a substance called chlorophyll is present in the leaves of the plant. It is green color pigment. ये कौन से कलर का पिगमेंट होता है? पिगमेंट ऑफ ग्रीन कलर। The chlorophyll not only provides green color to the leaves but also help in the process of photosynthesis. Chlorophyll capture the sunlight and along with the other raw material prepare the food in the leaves. This process of photosynthesis only occurs in the daytime in the presence when sunlight, hence it is called photosynthesis. ये photosynthesis तभी occurs होता है, तभी होता है जब डे टाइम होता है सनलाइट का। बट यू आर थिंकिंग दैट समटाइम्स लाइक इन द शिमला प्लेसेस द सनलाइट्स वर नॉट देयर, शिमला और यू कैन से जम्मू एंड कश्मीर, सो हाउ दे मेड, सो इन द समर डेज हल्की फुल्की वहाँ पे भी सनलाइट पहुँचती है, समर में तो बहुत ही हेल्प हो जाती है, इसलिए आपको समर में बहुत सारा पानी देना पड़ता है पौधों को। Why sun is called the ultimate source of energy for all living organism? आपने ये हेयर तो किया हुआ कि सन के बिना कुछ भी नहीं है। अब ऐसा क्यों है? We know that the plant use solar energy. Plant solar energy जिसके ऊपर अभी हम बात कर ही रहे थे, so make their food. The herbivorous animal depend upon the plant for their food. Herbivorous के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, डियर और काऊ। एंड हर्बीवोरस में काऊ तो हमें मिल्क भी देती है। एनिमल्स जो हमारे कार्निवोरस होते हैं, दे डू नॉट ईट प्लांट्स, डिपेंड ऑन हर्बीवोरस एनिमल। वो प्लांट तो नहीं ईट करते, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हर्बीवोरस। जो ये डियर हो गया, काऊ हो गया, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल दीजिए जो इन पे ही सिर्फ डिपेंड करते हैं, वो हुआ लायन, टाइगर। So therefore all living organisms directly or indirectly receive their energy from the sun. So sun is ultimate source है। If you are eating something non-veg or if you are eating veg, don't think that he is eating like that. Every food is same because we are taking directly or indirectly the energy of sun. There is nothing there. Cell in living organism. All living organisms are made up of tiny substances that are known as cell. Some organism microscopic contains only one cell, while other plant and animal contain many cells of different kinds. Part of a cell. अब देखिए, अब सेल होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हम इतने छोटे छोटे सेल होते हैं, यू कैन ओनली सी इट from very much power of the, you can say magnifying, you cannot see it using a normal magnifying glass, very much power is important. So अब हम पार्ट देख लेते हैं सेल के। Nucleus. Every cell has a nucleus present in the center that perform various function of the cell. The cell membrane. Every cell has an outer boundary which protect the cell called cell membrane. So इन दोनों को समझते हैं। The nucleus. अब nucleus क्या होता है? Nucleus वो होता है जो प्रेजेंट होता है सेंटर में और वो परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शन, वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। अब सेल मेम्ब्रेन होता है, हर सेल के पास एक आउटर बाउंड्री होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द साइटोप्लाज्म. एवरी सेल हैज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉल्ड साइटोप्लाज्म. सेल ऑर्गेनेल्स.
These are membrane bound structures found in within a cell. In the cytoplasm, the cell organelles has special function associated with them. Different cell organization found in cell are, सेल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो फाउंड होते हैं सेल के अंदर, जो कहाँ फाउंड होते हैं, साइटोप्लाज्म में. अब साइटोप्लाज्म एक सेल होता है, उसके पास एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे हम साइटोप्लाज्म करते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया है. अब देखते हैं सेल ऑर्गेनिज्म में क्या क्या फाइंड करते हैं. सो वो होते हैं माइटोचॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल, देन इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम that produce lipids and proteins in the cell, then its Golgi apparatus helps in exporting material out of cell, and then it is lysosomes help in digestion of the cell. Here you can see structure of cell in animal and plant. ये एनिमल सेल हुआ, यानी एक ह्यूमन बीइंग और कोई भी एनिमल आप ले लीजिए उसका सेल है ये. और इसमें कितने, क्या टेलिंग यू, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पर ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन और वहीं प्लांट में उनका ये रहा सेल मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म हमारा ये वाला हिस्सा हो गया और प्लांट का ये येलो वाला हिस्सा हो गया. हमारा न्यूक्लियस ये काला वाला हिस्सा हो गया और प्लांट का भी ये छोटा सा काला वाला हिस्सा. सब समझ गए कि दोनों में सेम ही होता है, ये एनिमल सेल, प्लांट सेल्स. लेकिन इनके अंदर सेल वॉल भी होती है. ये आपका सेल वॉल हो गया. वैक्यूओल, ये आपका वाइट स्ट्रक्चर वैक्यूओल हो गया. क्लोरोप्लास्ट, ये आपका ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट हो गया. ये डिफर करते हैं. ओके, सो आपने एनिमल एंड प्लांट का सेल देख लिया. Can photosynthesis take place in other part of the plant? Yes, green stems and branches of the plant can undergo the process of photosynthesis. For example, plant in desert animal like cactus do not have leaves, but they still exist there because their stem produce the food for plant. You have all seen that photosynthesis सिर्फ leaves से होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. क्लोरोफिल तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन लीव्स इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर लीव्स के अंदर कुछ कुछ लाइक इन बहुत सारे प्लांट में तो लीव्स होते ही हैं, लेकिन अगर आप कैक्टस की बात करें तो क्या उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर आ जाता है, जो आई एम जस्ट ड्राइंग दैट स्ट्रक्चर, यू कैन सी आई एम ड्राइंग थ्रू पेंसिल. उसके ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं, तो क्या आप इसे लीव कहेंगे? नहीं, ये लीव नहीं है, ये आपका कैक्टस का एक स्टेम ही है. और लेकिन इनके अंदर बहुत सारा क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये अपना खाना बना लेते हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हम इन्हें पानी दें या ना दें. अब पानी दें या ना दें ये कैसे हो सकता है? बिकॉज ये बहुत लेस वाटर करते हैं, ट्रांसपिरेशन से. प्लांट, नॉर्मल प्लांट को हम पानी देते हैं तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल भी है और उन्हें टाइम से टाइम पानी भी मिल रहा है. लेकिन इन प्लांट के अंदर एक डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं, तो इनके पास तो लीव्स नहीं है, स्टेम है जिनके अंदर क्लोरोफिल है, इसलिए इनको ये ज़रूरत पड़ती है. Why is the process of photosynthesis important? There will be no food if the plant would stop conducting the photosynthesis process. The plant take in carbon dioxide and produce oxygen during the process of photosynthesis. Hence, without this process, it would not be possible to survive on Earth as there would be no oxygen. Production of oxygen and carbohydrate by plant. Okay. अब आप समझ गए होंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज कोई फूड नहीं मिलेगा अगर हमें, क्योंकि हम लोग सोलर एनर्जी नहीं टेक कर पाएंगे. हम लोग खाते थोड़ी सोलर एनर्जी, हम कैसे खाते हैं, हाउ वी टेक सोलर एनर्जी, बिकॉज हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं, हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं जिनके अंदर हमें सोलर एनर्जी मिलती है. और हमें ऑक्सीजन की भी तो होता है, और अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा. अब चलिए आते हैं ऑक्सीजन की प्रोडक्शन और कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट के जरिए होती है. ये एक फिगर के एग्जांपल से हम लोग देखते हैं. प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ द डे सनलाइट. क्लोरोफिल
to produce carbohydrates and oxygen. The carbohydrate thus produced by the plants are converted into starch. ओके, यू ऑल नो कि ये जो प्रोसेस होता है ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्टार्च में. इफ यू डोंट नो, आई एम टेलिंग दिस अगेन. द कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, सो ये देखिए ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाए. ये थोड़ा डीपली पिक्चर है, सो नो नीड टू स्टडी दिस मोर, क्योंकि इसके अंदर आपको फॉर्मूला के जरिए दिया हुआ है. सो यू नो नीड टू स्टडी दिस थिंग. बस आप इतना स्टडी कर लीजिए कि प्लांट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर प्रीजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल प्रोड्यूस, फिर क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन को. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होता है प्लांट से और जो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में. अभी हमने बताया था आपको ऊपर. क्लोरोप्लास्ट एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Okay, let's look at this. This is outer membrane. This is stroma. This is thylakoid. This is thylakoid. This is granum. This is lamella. This is inner membrane. Now you understood? ये किसका था? स्ट्रक्चर था क्लोरोप्लास्ट का. क्लोरोप्लास्ट आर स्पेशल सेल organelles that found only in plant cell. They are called food producer of the plant cell. The chloroplasts are surrounded by two membranes called inner and outer membrane. The inner membrane surrounds stomata, thylakoid sacs, and then it is the chlorophyll molecules are present on the thylakoid. The chloroplast convert the sunlight into sugar that are used by plant cell. Okay. Hence, chloroplasts allow the conduction of the process of photosynthesis. The chlorophyll that can absorb the sunlight is present inside the chloroplast. When the light of the sun hits the chloroplast and the chlorophyll, the light energy is converted into chemical energy found in compounds such as ATP and NADPH. ATP or NADPH. Now we are going to study this. Then these energy molecules move into stomata when carbon dioxide is attached to them. As a result of the molecular reaction, oxygen and glucose are created. अब हम वापस इसे एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं. क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशल सेल होते हैं जो सिर्फ फाउंड होते हैं एक प्लांट सेल में. ओके, आप ये देख सकते हैं ये है एक क्लोरोप्लास्ट और फिर ये सराउंडेड होते हैं टू मेम्ब्रेन से. एक हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन. ये आउटर और ये इनर. The chlorophyll molecules are present on each of the thylakoids. The chloroplast converted into sunlight into sugar that are used by plant cell. क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हर एक टेलायाकोइड्स पे. टेलायाकोइड्स ये होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सब क्लोरोफिल है, हर एक पे है ये. और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट में और फिर ये कन्वर्ट होता है शुगर में जो यूज होते हैं प्लांट सेल से. Hence, chloroplasts allow the conduction of process of photosynthesis. The chlorophyll that can absorb the sunlight is present into chloroplast. और जो हमारा ऑब्जर्व कर सकता है सनलाइट, जो क्लोरोफिल हमारा ऑब्जर्व करता है सनलाइट, वो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में. Here you can see. और फिर जब लाइट ऑफ सन हिट करती है क्लोरोप्लास्ट एंड द क्लोरोफिल, जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी. जो कंपाउंड्स उसमें फाउंड होते हैं वो होते हैं ATP एंड NADPH. सो हम आपको ATP साइंस का फुल फॉर्म बताते हैं. ATP का मतलब होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके,
ये होता है एटीपी का मतलब। यू ऑल अंडरस्टूड दिस। अब हम आपको एनडीपीएच का फुल फॉर्म बताते हैं। नाइट्रोमिनिहेट एंडाइन डाइनुक्लोराइड एंड फोस्फोपेट। आपको इनके फुल फॉर्म बस जानने और कुछ भी नहीं। फिर ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव होते हैं स्टोमा में, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज अटैच्ड टू देम। एज अ रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्रिएट हो जाते हैं। ये फिगर बस एक एग्जांपल के लिए है। अगर आप इससे डीपली पढ़ना चाहते हो, यू कैन सर्च ऑन द गूगल एंड यू फाइंड अ डीपली पिक्चर। फिर हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कैन लीव्स विच आर रेड और ब्राउन और वायलेट इन कलर कंडक्ट फोटोसिंथेसिस? बिकॉज वो तो ग्रीन ही नहीं होते, फिर कैसे वो कंडक्ट करते? तो इसका आंसर मैंने दे रखा है, देखिए। Yes, the chlorophyll is also present in leaves that are not green in color. They are different color because the other color pigments are more than the green pigments in such leaves. अब ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल हमेशा ग्रीन ही होगा। कुछ कुछ प्लांट आपने देखा होगा ना जिसके लीव्स थोड़े वॉयलेट होंगे, जो थोड़े डेकोरेशन में हमारे यूज हो जाते हैं, है ना, देखा होगा आपने। फिर ये जो होते हैं ये ग्रीन नहीं होते हैं, ये डिफरेंट कलर हो जाते हैं आपके, रेड हो जाएंगे, थोड़े येलो हो जाएंगे, और ये तो हो भी जाता है कोई कोई प्लांट में, रेड हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे और वॉयलेट हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे, कोई भी रंग के हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ही एग्जाम्पल लिखे। इनके अंदर भी क्लोरोफिल होगा और ये जो कलर पिगमेंट्स होंगे ये मोर देन होंगे ग्रीन कलर पिगमेंट्स। अब हम आते हैं एल्गे कंटेन क्लोरोफिल। क्या आपने सोचा है एल्गे भी कंटेन कर सकते हैं क्लोरोफिल? आप एल्गे को तो देखते होंगे जब व्हेन मॉनसून विल कम। क्या आप जानते हैं मॉनसून कब आएगा? जून जुलाई में शुरू हो जाता है मॉनसून हमारा। तो एल्गे आर ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। जब आपकी बारिश होती तो होगी तो एक गड्ढे में गंदा गंदा पानी इकट्ठा हो जाता होगा, कहीं कहीं अच्छा पानी होगा लेकिन कहीं कहीं थोड़ा गंदा पानी इकट्ठा हो जाएगा, स्टैग्नेंट वाटर, और उसके अंदर एल्गे बन जाता है अपने आप। दे गेट देयर ग्रीन कलर फ्रॉम क्लोरोफिल since they have chlorophyll in them to capable conducting photosynthesis। और ये इम्पोर्टेंट होते हैं आपके ओलंपियाड्स के लिए। क्या आप जानते हैं that you, because this is only important for olympiads kids that are doing the olympiads। बाकी आपको इतना पढ़ने की डीपली कोई जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं एल्गे इन वाटर। Why do plants generate proteins and fats? Along with carbohydrates, plant can also produce proteins and fat which are formed with the help of nitrogen। कार्बोहाइड्रेट के साथ प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन और फैट जो फॉर्म करते हैं हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन is present in a large amount in the air, but plant cannot consume the nitrogen directly from the atmosphere. The soil often contains some bacteria that are capable of converting the nitrogen into nitrates, which can be used by the plants. Soil often कभी कभार कंटेन करेगा जो बैक्टीरिया, वो कैपेबल होंगे कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, और वो यूज होंगे बाय प्लांट सिर्फ। ऑल्सो फर्टिलाइजर यूज बाय फार्मर और गार्डनर से वो कंटेन करते हैं हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, वो दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच मिक्सेस इनटू सॉइल एंड यूज बाय प्लांट, जो मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ और यूज होते हैं प्लांट के साथ। बट इफ यू वांट टू मेक original खाद, so most of the thing you can do gobar, the natural gobar can help it। nutrients in plant that do not contain chlorophyll, many plants do not contain any chlorophylls, hence they are unable to prepare their food by themselves, therefore they rely on other plant and animal for their food। अब कुछ कुछ प्लांट होते हैं ना वो क्लोरोफिल नहीं कंटेन करते हैं, क्यों? बिकॉज दे उनके अंदर कोई सब्सटेंस होगा जो नहीं कंटेन, फिर वो अनेबल हो जाते हैं अपना खाना बनाने के लिए, फिर उन्हें क्या करना होता है दूसरे प्लांट और एनिमल पे रहना पड़ जाता है। आप देखिए कैसे, आपने कभी पैरासिटिक प्लांट देखा है?
Some plant live on another plant for their nutrients. These are called parasites. The plants on which these parasite plants survive are called host. होस्ट अब हमें किन्हें कहते हैं, जो प्लांट जिस पर ये पैरासिटिक सरवाइव करते हैं. मान के चलिए आपने एक मैंगो का ट्री लगाया, मैंगो. अब वहां पर वो थोड़ा एक जंगला इलाका बन गया. क्यों बना? क्योंकि उसके ऊपर पैरासिटिक प्लांट आ गए. तो अब आप होस्ट कहेंगे अपने मैंगो उस छोटे से प्लांट को, जो अब 1 ईयर का हो चुका है लेकिन उसके ऊपर पैरासिटिक है. अब कसकटा जो होता है हमारा, एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपने पिछली भी क्लास में पढ़ा होगा कि कसकटा क्या होता है. वो एक पौधा होता है, आप इसे हिंदी में आकाश बेल भी कहते हैं. और ये अपने रस से क्या करता है, उस वृक्ष को निर्बल कर देता है. और अगर आपको इसे फाइंड करना है तो इसके ऊपर सफेद सफेद फूल होंगे. ये हमने विकिपीडिया से उठाया. यू कैन सी, ये देखिए सफेद सफेद फूल है ना इसके ऊपर, तो इसका मतलब है ये कैस्कटा है. और फिगर 8 में क्या लिखा है, येलो कलर कसकटा ग्रोइंग ओवर ग्रीन प्लांट्स. वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट आई एम टेलिंग यू एवरी टॉपिक सो यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. सो पैरासिटिक प्लांट तो एक एग्जाम्पल हो गया. अब इनके अंदर एक वो पैरासाइट होगा जो इन्हें धीरे धीरे निर्बल कर, मतलब धीरे धीरे इन्हें स्ट्रॉन्ग से वीक कर देगा, जिसे आप हिंदी में निर्बल भी कहते हैं. फिर ये क्या होंगे, बेचारे सूख से जाएंगे और इन पैरासाइट प्लांट को खाना मिल जाएगा. और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये सर्कल्स तो बनाई दिए हैं. फिर होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. Some plants depend upon insects for the food and thus are called insectivorous. वो insect पे depend करते हैं. The leaves of the plant are modified into a pitcher-like structure. The top part of the leaf act as lid. जो top part होता है वो lid की तरह act करता है, जो open और close होता है, जो open and close करता है pitcher को. Pitcher contains hair in the downward direction, which traps the insects. The pitcher on capturing the insects secretes some digestive juice which help in the digestion of the insect. For example, Disidia and Naptanus. आप देख सकते हैं कि ये Naptanus पिक्चर शेप लीफ है. ये लिड है जो ओपन और क्लोज होते रहती है. और अगर यहाँ पर एक इंसेक्ट आके बैठेगा तुरंत ओपन हो जाएगा, फिर इंसेक्ट इसके अंदर चला जाएगा और लिड क्लोज हो जाएगी. और फिर क्या होगा, इनके साथ एक हेयर होगा डायवर्ट डायरेक्शन जो ट्रैप कर लेगा इंसेक्ट को. उसके बाद क्या होगा, पिक्चर जब इसे कैप्चर कर लेगा सो कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलेंगे इन प्लांट से जो हेल्प करेंगे डाइजेशन ऑफ इंसेक्ट. ओके, इन दोनों में ऐसा ही होगा. डिसहीडिया पिक्चर शेप प्लांट में भी ऐसा ही होगा और इस पिक्चर प्लांट में भी. फिर एक होता है सैप्रोट्रोपस. सम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव decaying food and organism. This mode of nutrition are called saprotropic nutrients, and the organism that survive because of the sapronutrients are called saprophytes. Some organism survive करते हैं कुछ फूड और ऑर्गेनिज्म पे जिन पे ये सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं हम इन्हें. फिर और ये क्या करते हैं, सर्वाइव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि saprotropic nutrients are called saprophytes. How do saprophytes obtain their nutrients? Saprophytes secrete digestive juices on the decaying and dead matter. These juices convert the matter into a solution. और ये juice convert कर देते हैं matter into solution. The saprophytes that absorb the nutrients from the solution, for example fungi, yeast and mushroom, are saprophytes that are found in stale food and pickle which are exposed to hot and humid environment. मशरूम तो आप लोग खाते होंगे, लेकिन आपको पता है आप तो एक ही टाइप का मशरूम खाते होंगे, लेकिन कुछ कुछ मशरूम होते हैं वो फंगी होते हैं. उन मशरूम को उगाया तो नहीं जाता है, वो खुद से उगाते हैं मशरूम. इफ आई कैन से सम नेम ऑफ डेथली, आपने डेथली मशरूम तो नहीं कहेंगे, लेकिन यू कैन से दैट दे आर नॉट गुड मशरूम. सो आई कैन से जस्ट
remembering the name and just saying them. और ये ज्यादातर आपके हिली एरियाज में मशरूम उगते हैं और जो कचरा वो होता है, और लेकिन इनको हीट चाहिए होती है. तो एक मशरूम हो जाएगा आपका क्लोबिया. क्लोबिया क्लोबिया इट इज कोलाइब या क्लोबिया. देन इट इज अमांटिया सॉरी. और इनको हॉट और ह्यूमिड विंटर. और एक फंगी तो आपका ये होता है जो आपके फूड पे लग गया. ये ब्रेड अब कुछ दिन ज़्यादा बाहर रखा गया तो इसके ऊपर फंगी लग गया जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है. अब इन्हें कोई खा ही नहीं सकता, सो इसलिए हम इन्हें कहेंगे फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड. अब हमने अपना चैप्टर 80% तक कवर कर लिया है. अब हम बाकी कर लेते हैं. अब साइम्बोटिक रिलेशनशिप. कुछ ऑर्गेनिज्म live together and share shelter and food with each other. These are said to be symbiotic relationship. कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और शेल्टर और फूड शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. इन्हें हम कहते हैं symbiotic relationship. कुछ एग्जाम्पल इनके होंगे symbiotic relationship के. Some fungi living on the root of trees. These fungi take food from the tree and in return help the tree in observing water and nutrient from the soil. अब क्या कहेंगे आप इन्हें, जो फंगीज लिव करते हैं रूट ऑफ, ये क्या करेंगे, अपना खाना ले लेंगे ट्रीज से, लेकिन उनको कुछ देना पड़ेगा रिलेशन में. तो क्या करेंगे, उन्हें गिफ्ट दे देंगे, वो उनकी हेल्प करवा देंगे ऑब्जर्विंग वाटर. अब ये कब हो सकता है, जब कोई पेड़ बूढ़ा हो जाए. अगर पेड़ बूढ़ा हो गया तो उसे थोड़ी मदद तो चाहिए, इसकी मदद कर देंगे ये फंगी. फिर कुछ ऑर्गेनिज्म कंटेन करते हैं क्लोरोफिल सच एज एल्गे लिव इन एसोसिएशन विद अ फंगस. वो कुछ फंगस के साथ तो रहते ही होंगे. सो इन्हें दोनों साथ क्या कहेंगे, लीचिन्स. ओके, लीचिन्स. आप देख सकते हैं फंगस और एल्गे को अगर हम लोग प्लस कर दे तो लीचिन्स आ गया. आपको पिक्चर भी गिवन है. ये एल्गे प्रोवाइड करेंगे फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड फंगस प्रोवाइड वाटर मिनरल एंड शेल्टर टू द एल्गे. सो ये एक कौन सी रिलेशनशिप हो गई, साइम्बोटिक रिलेशनशिप. एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को खाना भी देंगे, एक दूसरे को शेल्टर भी देंगे. ये लीशंस की फिगर है. replenishing the soil with nutrients. Plant get their nutrients from the soil mainly, hence there is needed to replenish the soil again with the nutrients so that the plant can survive on it. Plant को अपना soil से main nutrients मिलता है, so उन्हें एक need होती है replenish की, जिससे वो soil again खाना ला सके, so plant survive करे. Fertilizer and manure are often used to replenish the soil with the nutrients. They contain potassium, phosphorus and nitrogen, all of which are important for plant. A bacterium called rhizobium is present in the soil which can convert nitrogen present in it form that consume the plant. एक बैक्टीरियम जिसे हम राइजोबियम भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है सोइल में, जो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन प्रेजेंट इन फॉर्म दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय प्लांट. राइजोबियम जनरली लिव करता है रूट ऑफ प्लांट सच एज पीस, बीन्स, ग्राम्स एंड लिगम्स एंड प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स टू दिस प्लांट. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अगेन symbiotic relationship. The farmer often do not need to use fertilizer while growing such crops and that are important from Olympiads. So आपकी जो भी मैंने लिख रखा है Olympiads में ज़रूर आते हैं, because ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आते ही हैं हमेशा Olympiads में. अब ये फिगर है राइबोजियम बैक्टीरिया इन सोइल. यू कैन सी राइबोजियम बैक्टीरिया इन द सोइल. So this chapter is completely ended now, and thanks a lot for everyone who is watching this video till the end. And if you would
enjoy the video and learn the new things on this video, consider subscribing our channel, share it with your friend also so they can also learn from it, and also like the video. We will meet you soon with the question answer of this chapter. Till then, have a good day and